Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 23 of Mathematical Statistics. In the last class, we discussed the Poisson distribution and we also briefly touched the continuous distributions, in which we discussed the uniform distribution. And if you remember that I gave you this small problem or example where if we add random numbers, array of random numbers, then we can generate a Gaussian or a normal distribution. We'll take it further today. First of all, we'll talk about the continuous distribution. What is a continuous distribution? If you remember, continuous distribution is something where we have the variable x, which is continuous. First of all, the variable should be continuous. Then any distribution, for example, the probability density function will be called a continuous distribution. Why? Because it gives us the probability of a continuous random variable. And we also have the continuous cumulative density function. Your cumulative distribution function. So we can have a continuous distribution because we have a continuous variable. In this, we first of all studied a uniform distribution, which was one of the simplest continuous distribution in all of the statistics is the continuous uniform distribution. This distribution is characterized by a density function that is flat, and thus the probability is uniform in a closed interval. This distribution is characterized by a density function that is flat, and thus the probability is uniform in a closed interval. Let's look at this equation. The density function of the continuous uniform random variable x on the interval a to b is defined as f(x), where x is the random variable, a and b are the range of the random variable x, that x starts from a and goes up till b here, and the density is given as 1 over b minus a. Uniform distribution is also called rectangular distribution. Let's draw it. If this is my random variable x and I have a and I have a b, two values of the random variable, then uniform distribution looks like this, where the height is 1 over b minus a. And if I find the area of this under this density function, it is equal to, yes, it is equal to 1, because it is the density is 1 over b minus a, and the total difference between x and a is b minus a. So if you cancel, the area comes out to be 1. We also did some examples on uniform distribution, how uniform distribution helps in finding the probability. For example, we did that example in which a conference room or a meeting room was reserved and the probability of having a shorter meeting or a longer meeting is the same. In that case, we observed that uniform distribution was used. Although uniform distribution is not of much practical importance, but we always find some applications in which uniform distribution fits in well. एक और बात जरा गौर से सुनिएगा. देखें, इतनी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस की, पॉइसन जैसे डिस्क्रीट के केस में हमने बायनोमियल डिस्कस की, पॉइसन डिस्कस की, कॉन्टिन्यूस में अभी तक हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की है. ये डिस्ट्रीब्यूशंस स्टैंडर्ड हैं,
स्टैंडर्ड इस तरह से हैं कि रैंडम वेरिएबल्स जो हम कोई भी चांस एक्सपेरिमेंट है which gives me an output which we can define a random variable, उस रैंडम वेरिएबल की डेंसिटी फंक्शन कुछ भी हो सकती है, मगर कुछ डेंसिटी फंक्शन ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा केसेस में आ जाते हैं। यानी कि हम नॉर्मल प्रोसीजर क्या होना चाहिए, चलें यूँ देखते हैं इसको। क्या हम एक चांस एक्सपेरिमेंट है उसमें हम एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, वो रैंडम वेरिएबल की क्या डेंसिटी फंक्शन है या क्या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो हमारे फाइंड आउट करने का कुछ तरीके हमने देखे थे पहले। फॉर एग्जांपल इन डिस्क्रीट केस, इन द कार्ड केस हम कहते हैं टोटल 52 हैं, किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी जो है इक्वल है, तो हम उस तरह से निकाल लेते थे। अब कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसी हैं जो बहुत से चांस एक्सपेरिमेंट्स की आउटकम्स को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए वो मशहूर हो जाती हैं, इसलिए वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। जैसे कि पॉइजन थी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी, अभी हम यूनिफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है और काफ़ी ज़्यादा चांस एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल आ जाती है इन द एंड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द एंटायर फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द normal distribution. Its graph called the normal curve is the bell-shaped curve. अब ये देखें मैंने एक घंटी की तस्वीर लगा दिया है, इसका ऑल दो स्टैटिस्टिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर हम हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं कि वो क्या है, बेल शेप्ड है। तो बेल जो है घंटी जो कि स्कूलों में होती थी पहले, इसके पीछे हैंडल होता था और वो छुट्टी का टाइम या पीरियड जब चेंज होता था तो ये बेल बजती थी, या चर्च में भी होती है। तो इस बेल की अगर शेप देखें ये वाली आप यहाँ से, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप इस तरह की होती है। तो याद रखने के लिए घंटी ज़हन में आना चाहिए, जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम आए तो हमें पता चल जानी चाहिए इसकी शेप कैसी है। कुछ बातें इसके बारे में कि इसका पीक है यहाँ पे, ये नियरली जीरो के करीब से शुरू होती है, जीरो कभी भी नहीं होती, ये जीरो के करीब से शुरू होती है और फिर मैक्सिमम जाती है एंड देन इट गोज डाउन। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम फर्दर स्टडी करते हैं, मगर हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ कि जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आए तो घंटी वाली शेप आनी चाहिए। मैंने कुछ एग्जांपल दी थी आपको लास्ट लेक्चर में, आई होप कि आपने उस पर कुछ फर्दर भी काम किया होगा। वो क्या थी कि एक स्टूडेंट था छोटी क्लास में, उसको नंबर दिया, टीचर ने कह दिया कि जी आप 1 से 100 तक नंबर्स ऐड करें। तो उस बच्चे ने बड़े जल्दी वो नंबर्स ऐड कर दिए। कैसे किए थे? उसने 1 2 3 इस तरह लिखे, 49 50 51 एंड लेट्स से 97 98 99 एंड 100। तो उसने इतना पेयर्स बना लिया कि 1 को 99 में ऐड कर दिया, 2 को 98 में ऐड किया, वैसा 49 को 50, तो उसको मिले 4900 एक मिल गए, प्लस एक ऑलरेडी हमारे पास 100 था ये वाला, एंड प्लस 50, तो ये बना 50 100 एंड 50। ओके, 50 150 टोटल सम आ गया। फिर मैंने कहा था कि जी अगर मैं रैंडम नंबर्स जनरेट करूं, रैंडम नंबर्स जनरेट करूं 1 से 100 के दरमियान, 1 से 100 के दरमियान मैं कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट करता हूं और x1 एक डिफाइन कर देता हूं जिसमें बहुत से मेरे पास रैंडम नंबर्स आते हैं, जैसे 33 आ गया, 23 एंड इस तरह काफ़ी सारे नंबर्स मैंने जनरेट कर लिए, जिसमें 1 भी आया, कहीं 0 भी आ गया। फिर x2 जनरेट कराया, वो भी एक अरे ऑफ रैंडम नंबर्स जनरेट कराई। वो रैंडम नंबर्स फॉर एग्जांपल अभी हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म है, और कैसे हैं कि एक बास्केट में मैंने 100 या डिस्क डाल दी जिसमें, बल्कि 101 होंगी, क्योंकि जिसमें 0 1
2 3 तमाम नंबर्स डाल दिए और हम उसमें से हाथ डाल के एक नंबर निकालते हैं, फिर उसे हिलाते हैं, फिर एक हाथ डाल के एक नंबर निकालते हैं, नंबर वापस डालते हैं और फिर निकालते हैं, तो वो नंबर मैंने लिख लिए। इसी तरह ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत दफ़ा किया अगर, तो यहाँ पे 40 आ गया, 50 आ गया एंड सो ऑन सो फोर्थ, करते करते ये मैंने कोई n टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट कर लिया। फिर मैंने कहा था कि इसके एवरेज निकालें। अब क्या है, अगर ये n बहुत लार्ज है, जरा आप गौर से सुनिएगा कि अगर n इज वेरी वेरी लार्ज, देन बिकॉज दे आर रैंडमली जनरेटेड नंबर्स, तो यहाँ पे इस पूरे कॉलम में कहीं 1 भी आएगा, कहीं 99 भी आएगा, कहीं 100 आएगा तो कहीं 0 भी आएगा, कहीं 2 आएगा तो कहीं 98 भी आएगा। तो जब हम इसकी एवरेज निकालेंगे तो दैट एवरेज विल बी क्लोज टू 50। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम की जब एवरेज निकालेंगे दैट विल अगेन बी क्लोज टू 50। मगर एक एवरेज विच इज क्लोज टू 0 इज वेरी अनलाइकली। यानी कि इसके होने के चांसेस बहुत बहुत कम है, क्योंकि इसका मतलब ये एवरेज क्लोज टू 0 होने का मतलब क्या है कि सारे के सारे नंबर्स क्लोज टू 0 हैं, छोटे नंबर्स हैं। अब अगर x1 एक दफा एक्सपेरिमेंट किया, x2 एक और स्टूडेंट्स को मैंने यूज किया टू गेट आउट नंबर्स फ्रॉम दिस बास्केट, x3 एक और, तो क्या पॉसिबल है कि एक आयत रो में आयत पोजीशन पे सारे के सारे के नंबर्स छोटे आए? अगर किसी एक का 0 आ रहा है तो लाजमी नहीं है कि दूसरे का भी उसी 10वीं टर्न में, अगर ये आयत 10वीं टर्न है, यानी कि 10वीं दफा जब 10वीं बारी जब उसने वो कार्ड निकाला या नंबर निकाला, तो क्या ये पॉसिबल है स्टेटिस्टिकली कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का 10वीं बारी 0 ही आए? नहीं, किसी का 0 आएगा, किसी का कुछ और आ सकता है। इसी तरह an average close to 100 is also very unlikely। अनलाइकली का मतलब क्या हुआ? नियरली इम्पॉसिबल। बहुत मुश्किल है कि ऐसा कोई केस आए जिसमें सबकी एवरेज 100 के बराबर आए। तो मोस्टली एवरेजेस मेरी 50 के अराउंड होंगी, 55, 45, 60 इस तरह से चलेंगे। अब अगर मैं इन नंबर्स का हिस्टोग्राम बनाऊं तो हिस्टोग्राम कैसे बनेगा? मैंने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था कि क्लोज टू 50 मेरी बहुत ज़्यादा वैल्यूज आएंगी, फिर 50 से ज़्यादा थोड़ी कम आएंगी, फिर 60 से ज़्यादा थोड़ी और कम, फिर 70 से और कम, तो इधर आ जाएंगे हम 30 से नीचे, इस तरह। तो ये जो कर्व बनेगी ये एक बेल शेप बन जाएगी कर्व। दिस कर्व कैन बी विल लुक लाइक अ बेल शेप, यानी कि इनकी पीक्स को अगर मैं जोड़ूं, तमाम हिस्टोग्राम के जो बार्स हैं उनकी पीक्स को जोड़ूं तो कोई बेल शेप बनेगी। तो ये तो एक फिनोमेना हो गया जहां पे आप बेल शेप कर्व निकाल सकते हैं। और क्या किया आपने? बहुत से रैंडम नंबर्स ऐड किए, वो चाहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थे, चाहे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड थे, किसी तरह से भी डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो उनका रिजल्ट हमेशा जो है वो क्या आएगा? एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। ये एक थ्योरम भी है जो लेटर लेक्चर्स में मैं इस थ्योरम पे फिर वापस भी आऊंगा कि उसका क्या मतलब। मगर यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो फिनोमेना जहाँ पे बहुत से रैंडम फिनोमेना ऐड होते हैं वहां पे नॉर्मली क्या बनता है? नॉर्मल कर्व ही बनती है। इसमें अगर कोई प्रोसेस है जिसमें बहुत से चीजें शामिल हैं, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी बना रहे हैं हम, उसमें बहुत से वर्कर्स शामिल हैं, बहुत से कंपोनेंट्स शामिल हैं, तमाम कंपोनेंट्स के खराब होने की या ठीक होने की कोई अपनी प्रोबेबिलिटी होगी, ओके। मगर एज अ होल गाड़ी के चलने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? तो उन तमाम कंपोनेंट्स के सही होने पे, चलने पे। तो वो कंबाइंड हो जाएगा, सबका इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो उस एडेड इफेक्ट का जो आउटपुट आना चाहिए वो नॉर्मली नॉर्मल कर्व ही आना चाहिए। इस तरह और भी बहुत से प्रोसेसेस होते हैं जिसमें आउटपुट हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। हम फर्दर इसको भी देखते रहेंगे गाय बगाए,
मगर अभी मोटिवेशन के लिए इतना काफ़ी है कि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, इसी एग्जांपल को मैंने क्या किया कि कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिख लिया। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती नहीं है तो परेशान नहीं होइएगा, आप फोटोन में भी ये काम कर सकते हैं, आप मैटलैब में भी कर सकते हैं, इवन टू सम एक्सटेंड आप ये एक्सेल में भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया, ये पहली 2 लाइनें अगर मैं इग्नोर कर दूं, आपको अगर मैटलैब नहीं आती, लैंग्वेज नहीं आती, तो इसको जस्ट इग्नोर कर दें। हमने क्या किया, एक रैंडम मैट्रिक्स जनरेट किया। मैट्रिक्स कितना बड़ा है, 10,000 बाय 10,000 का एक मैट्रिक्स जनरेट किया जिसमें रैंडम वैल्यूज डाल दी। कहाँ से रैंडम वैल्यूज कौन सी हैं, 0 से 1 तक। तो 10,000 बाय 10,000 का एक रैंडम मैट्रिक्स जनरेट किया और वैल्यूज इसमें हैं 0 से 1 तक, ये तमाम वैल्यूज हमने लिख ली। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये वाली लाइन जो है ये देती है मुझे। फिर मैंने किया सम कर लिया इसको। जब सम ऑफ ए करता हूं तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या करती है, हर इसको कॉलम वाइज ऐड करके रख देती है। तो एक रो वेक्टर दे देती है मुझे विच इज 1 बाय 10,000, ये लाइन है। और जब मैंने इसको 1000 से हर एलिमेंट को 10,000 से डिवाइड कर दिया तो वो एवरेज वैल्यू बन गई। ओके, जो हम काम कर रहे थे एवरेज। तो हमने पहले क्या किया, 10,000 बाय 10,000 का मैट्रिक्स जनरेट किया, उसको कॉलम वाइज ऐड कर लिया, हर कॉलम को ऐड किया बाय दिस फार्मूला सम ऑफ ए डिवाइडेड बाय 10,000 विच गिव्स मी द एवरेज वैल्यू। फिर मैंने एक फिगर खोली, उसमें हिस्टोग्राम ऑफ बी प्लॉट किया। इसका जो ये वैल्यूज थी उनका हिस्टोग्राम प्लॉट किया। हिस्टोग्राम को याद होगा आपको, क्या था हिस्टोग्राम, कि अगर हम वैल्यू दी थी हम उसमें ग्रुप्स डिफाइन कर लेते थे। टोटल रेंज को अगर 0 से 1 तक रेंज है उसको मैंने 30 ग्रुप्स में डिफाइन कर लिया, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए और देखा अगर बड़े नंबर्स में बात करूँ 100, 0 से 100 तक है और मैं 10 ग्रुप्स बनाऊं तो मैं देखूंगा वो वैल्यूज जो कि 0 से 10 तक हैं, फिर 10 से 20 तक कितने नंबर्स आए हैं, 20 से 30 तक कितने आए, उनको काउंट करूंगा और फिर उसको हिस्टोग्राम में प्लॉट कर लूंगा। तो यहां पे हो गया b, 30। फिर हमने मीन वैल्यू ऑफ b निकाली, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b निकाली, मिनिमम ऑफ b, मैक्सिमम ऑफ b, और उस हिसाब से हमने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके ऊपर प्लॉट की। ये वही इक्वेशन है जो अभी हम आपको दिखा भी चुके हैं और अभी दोबारा भी दिखाएंगे। इसकी जो कर्व बनी वो क्या बनी, ये ब्लू वाला जो पोर्शन है, दीज आर ऑल इज अ हिस्टोग्राम। और इस हिस्टोग्राम से अगर मैं मीन वैल्यू निकालूं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं तो देन आई कैन प्लॉट 1/2 पाई रूट सिग्मा एक्सपोनेंशियल माइनस x माइनस म्यू होल स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा। इसको जब मैं प्लॉट करता हूं तो ये रेड वाली कर्व बन जाती है, तो वो एग्जैक्टली उसके ऊपर आ रही है। सो यहां पे मैंने फिर प्रूव किया आपको कि रैंडम नंबर्स को जब हम ऐड करके एवरेज करते हैं, रैंडम नंबर की अरेज को, बहुत सी अरेज ऑफ रैंडम नंबर्स को ऐड करते हैं, फिर उनको एवरेज एक अरे बनाते हैं, उसको जब हम प्लॉट करते हैं तो वो हमें हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देती है। और उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जब मैंने उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली और वो एक नॉर्मल एक डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में डाली और प्लॉट की तो वो उसके एग्जैक्टली उसके ऊपर आ रही है और शो कर रही है कि ये यूं बिहेव करता है। अब यहां पे एक चीज नोट करें कि नंबर्स काफी ज्यादा थे, अबाउट 10,000 बाय 10,000 की एरिया थी। ये छोटे नंबर्स पे भी काम करती है मगर इतना अच्छा स्मूथ गॉसियन नहीं बनेगा। जितने लार्जर अफेक्ट होंगे, जितना ज्यादा अफेक्ट होगा उतना अच्छा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। नेक्स्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स अप्रॉक्सीमेटली मैनी फिनोमेना दैट अकर इन नेचर, इंडस्ट्री एंड रिसर्च। कि ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि काफी ज्यादा फिनोमेना अफेक्ट्स या नेचुरल जो इफेक्ट्स हैं, इंडस्ट्री में जो इफेक्ट्स हैं और रिसर्च में जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर जो हम फिजिकल मेजरमेंट्स करते हैं, फिजिकल
मेजरमेंट्स, किसमें? मेट्रोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी कि ज़मीन के बारे में कोई हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसमें जो मेजरमेंट्स करते हैं उनमें जो डाटा होता है वो भी अक्सर गॉसियन होता है। रेनफॉल, बारिश के बारे में जब हम स्टडीज़ करते हैं उसमें भी डाटा जो आता है वो भी तकरीबन उसमें भी इफेक्ट्स जो हैं वो गॉसियन से या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डिफाइन हो सकते हैं। मेजरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, के जो पार्ट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बॉल बेरिंग बनाते हैं या कोई और पार्ट बना रहे हैं मशीन पे, तो उसमें जो मेजरमेंट करते हैं उसमें जो एरर आता है या जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अगर एक हम एक्सपेरिमेंट करें, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करें, उसमें डाटा हम रीड करते हैं, डाटा हम ऑब्जर्व करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो हर दफ़ा वही डाटा नहीं आता, वही नंबर नहीं आता, मगर उस नंबर में थोड़ी वेरिएशन आती है। उस वेरिएशन को भी जब आप प्लॉट करेंगे तो वो भी क्या बनती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बनती है। सो ये सारे फिनोमेना जो हैं आर ऑफन मोर देन एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड विद अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन तमाम फिनोमेना में नॉर्मली जो पीडीएफ बनती है रैंडम वेरिएबल की, वो क्या बनती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बनती है। नेक्स्ट, किसने ढूंढी इसे और किसने इसका नाम दिया, ये देखते हैं। इन 1733 Abraham de Moivre developed the mathematical equations of the normal curve। ये जो mathematical equation है इसको किसने किया? Abraham de Moivre में, which provided a basis for which much of the theory of inductive statistics is founded। The normal distribution is often referred to as Gaussian distribution। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और किसके ऑनर में, किसकी रिस्पेक्ट में? कार्ल फ्रेडरिक गॉस 1777 से 1855 तक थे ये, who also derived its equation from a study of errors in repeated measurements of the same quantity। कि गॉस साहब ने क्या किया था कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो बार बार वही मेजरमेंट्स ले रहे थे और मेजरमेंट्स में कुछ एरर्स आ रहे थे। उन एरर्स को जब उन्होंने स्टडी किया एज अ रैंडम वेरिएबल के मेजरमेंट में जितना एरर आ रहा है उसको रैंडम वेरिएबल डिफाइन करके स्टडी किया, तो उनका भी रिजल्ट जो आया वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही आया, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। चलें जी, नेक्स्ट अप, ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात होगी जिसकी आज सच तो साइंटिफिकली जरूरत नहीं है, मगर अंदाजा होना चाहिए कि कितनी पुरानी है और कहाँ से ये ड्राइव हुई थी, कहाँ से ये शुरू हुई। अब आते हैं दोबारा इसकी इक्वेशन की तरफ। अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग द बेल शेप्ड आपको मैंने बेल भी दिखाई थी आज, उस हिसाब से याद रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। डेंसिटी ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय n। डेंसिटी ऑफ x is denoted by n। The density of the normal random variable x with mean mu and variance sigma square is given as this। इसमें अगर देखें आप, इस इक्वेशन को देखें आप प्लीज, तो क्या है इसमें? n नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, mu represents the mean value of the random variable and sigma represents the standard deviation of the random variable। 1/2 pi under root sigma, 1/2 pi under root sigma is a constant क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर अगेन अ कांस्टेंट, इसमें भी x नहीं है। x माइनस म्यू होल स्क्वायर, x माइनस म्यू होल स्क्वायर एंड x गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये तो होगी ये इक्वेशन। इसमें पाई की वो यूजुअल डेफिनेशन है 3.14 और एक्सपोनेंशियल की भी e की भी वही 2.712828 वो वाली डेफिनेशन है। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल हो गया ये। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। The mode, which is the point on the horizontal axis where the curve is maximum, occurs at x is equal to mu. When
x equals mu, we call this point a mode. Okay, and mode is a point where there is a maxima of the normal distribution. तो मीन पे हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है. क्यों? अगर आपको इक्वेशन मैं दोबारा लिखूं यहाँ पे 1/2 पाई अंडर रूट सिग्मा एक्सपोनेंशियल माइनस x माइनस म्यू होल स्क्वायर अवर 2 सिग्मा स्क्वायर. x अगर मीन के बराबर हो जाए x माइनस म्यू, x इज इक्वल टू म्यू, तो ये टर्म 0 रहती है और एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आई थी. द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू द मीन वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे रैंडम वेरिएबल पे क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है. सो दिस इज एन इवन फंक्शन, इट इज इवन फंक्शन एंड इट्स सिमेट्रिक अबाउट म्यू x इज इक्वल टू म्यू. इस लाइन पे ये सिमेट्रिक है, लेफ्ट और राइट इट इज सिमेट्रिक. ये थर्ड पॉइंट अगर देखें जरा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मे बी एट द फर्स्ट साइट, मगर बहुत आसान है. द कर्व हैज इट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू म्यू प्लस माइनस सिग्मा. ये अगर x है, इसमें मैं म्यू सिग्मा ऐड कर दूं तो वो ये पॉइंट बनता है. तो दिस पॉइंट इज x प्लस सिग्मा. एक ये पॉइंट बनेगा तो इसी का ऑपोजिट यहां पे बन जाएगा, यानी कि ये कौन सा होगा, x माइनस सिग्मा. रैंडम वेरिएबल x माइनस सिग्मा इज कॉन्केव डाउनवर्ड. द कर्व हैज इट्स पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन एट दिस इज कॉन्केव. यस, नेक्स्ट सेंटेंस इज कॉन्केव डाउनवर्ड इफ x lies in this range. यहां पे ये कनकेव है. कनकेव आपको याद होगा कि अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो ये कनकेव होता है और यहां से देख रहा हूं तो ये कन्वेक्स होता है. कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर वाली बात. इनवर्ड है या आउटवर्ड है. सो इज कनकेव डाउनवर्ड फ्रॉम म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा. सॉरी, यहां पे ये मैं लिखा था म्यू माइनस सिग्मा और ये म्यू प्लस सिग्मा. एक्स नहीं, म्यू प्लस सिग्मा एंड म्यू माइनस सिग्मा. यहां पे ये देखें ये कर्व डाउनवर्ड कर रहा है, मगर इससे आगे जाएं तो ये कर्व अपवर्ड करता है इस तरह से. सो एंड इज कनकेव अपवर्ड अदरवाइज. तो ये तो इसकी शेप के बारे में. नेक्स्ट, the normal curve approaches the horizontal axis asymptotically as we proceed in either direction away from the mean. अगर मीन से हम दूर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो यह हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस को अप्रोच करता है मगर कभी भी टच नहीं करता. इट्स नेवर इक्वल टू 0. ये याद रखिएगा. अ गॉसियन कर्व नेवर टचेस गोज इक्वल टू 0. इट गोज मिनिमल छोटा होता रहता है. अप्रोचेस touches the x-axis, nearly touches the x-axis as x approaches infinity. The normal curve approaches the horizontal axis asymptotically as we proceed in either direction away from the mean. तो either हम पॉजिटिव x की तरफ जाएं या नेगेटिव x की तरफ जाएं, ये x एक्सिस को अप्रोच करता है. The total area under the curve and above the horizontal axis is equal to 1. तो horizontal axis is the x-axis, तो ये total area is equal to 1. यानी कि if I write it like this, 1/2 pi sigma, minus infinity to plus infinity e raised to power minus x minus mu whole square over 2 sigma square dx. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो इट विल बी इक्वल टू 1. तो एरिया कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके के प्लस इन्फिनिटी तक, इस एरिया इज इक्वल टू 1. सो इंडीड इट्स अ डेंसिटी फंक्शन बिकॉज satisfies the property that the total probability is equal to 1. Now let's find the mean of the normal distribution.
Let's say this is f of x is equal to 1 over 2 pi sigma e raised to a minus 1 by 2 x minus mu over sigma स्क्वायर। ये लिखने का मेरा स्टाइल दो तीन किस्म का मैं यूज करता हूँ, कई दफा मैं यूं लिख लेता हूँ e raised to a माइनस x माइनस म्यू होल स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर इज द सेम थिंग, सिर्फ मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए इस दफा, इसलिए यूं लिख रहा हूँ। तो ये तो होगी हमारी डेंसिटी फंक्शन फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको लिखते कहते थे n x म्यू सिग्मा। मैं यहां पे से f of x लिख रहा हूं, so because I already know it's a normal distribution. To find the mean which is equal to expected value of x, what we do is we define a function y is equal to random variable x minus mu. Okay, and we know from theorem that expected value of y, जो हम theorems किए थे about expected value is equal to expected value of x minus expected value of mu. याद है आपको expected value of x minus expected value of mu, और ये बराबर था expected value of x minus mu के, क्योंकि expected value of mu is again mu because mu is a constant. अब अगर हम ये expected value find करना चाहें from equation number 1 using equation number 1 as a density function, and we want to find equation number 2. So I can write expected value of x minus mu is nothing but minus infinity to plus infinity under root 2 pi sigma into x minus mu. ये क्यों लिखा? क्योंकि हम इसकी एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, और एक्सपोनेंशियल माइनस 1 by 2 x minus mu over sigma whole square integrated over all values of x from minus infinity to plus infinity. Now let's define a random variable z. Rather, not a random variable, substitution. Sorry, we do integration by substitution, in which we say z is equal to x minus mu over sigma. मैंने क्योंकि इसको रैंडम वेरिएबल क्या दिया था, डजंट मैटर, बिकॉज x है रैंडम वेरिएबल तो z भी रैंडम वेरिएबल होगा, मगर यहाँ पे हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, हम सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं इसको इन द इंटीग्रल। अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दिस implies what, that dz is equal to dx over sigma, यहाँ से आप निकाल सकते हैं dx is equal to sigma dz. Secondly, when x approaches minus infinity, z will approach, z will approach, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी डालें तो z will again be minus infinity. When x approaches plus infinity, z also approaches plus infinity. ये दोनों अगर सही हैं तो I can say expected value of x minus mu is 1 over 2 pi, तो वैसे ही रहेगा ये वाला 1 over 2 pi under root x minus mu over sigma is z e raised to a minus half x minus mu over sigma square minus half z square, और dx की जगह क्या लिखना था बच्चे, सिग्मा dz, ये यहां से। अब हम सिग्मा बाहर लेके जा सकते हैं यहां से,
तो इट विल बी 1/2 पाई, यहाँ पे सिग्मा आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी ई रेज़ टू पावर माइनस हाफ जी स्क्वायर डी जी। अब इंटीग्रेंड को देखें, आर्गुमेंट या इंटीग्रांड जिसको हमें इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेट करना है, वो देखें तो ई एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ जी स्क्वायर, यहाँ पे z को नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिस पार्ट इज अ इवन फंक्शन, मगर z यहाँ पे मौजूद है विच इज एन ऑड फंक्शन, so the total function is an odd function, और odd function integrated from minus infinity to plus infinity will give me a integral which is equal to 0, which is equal to 0. So what we find here is expected value of x minus mu is equal to 0, but from 2 we see that expected value of x minus mu is equal to expected value of x minus mu equals 0, which says expected value of x is equal to mu. Expected value of x is equal to mu. यहाँ पे इस स्लाइड पे हमने क्या किया, we wanted to find the mean of normal distribution. So हमने पहले normal distribution का फॉर्मूला लिख लिया, f of x या x n of x mu sigma equals to 1/2 pi sigma e raised to a minus half x minus mu over sigma whole square. To find the mean, we take the expected value of x and we define another random variable. क्योंकि डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करना जरा मुश्किल था, तो हमने एक ट्रिक यूज की जिसमें हमने y इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिफाइन किया, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज नोन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू विच इज बाय थ्योरम इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू। इसको करने के लिए हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू जब यहाँ पे डाला, x माइनस म्यू इंटीग्रल इंटू एफ एक्स डी एक्स, कैसे निकालते थे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ऐसे निकालते थे कि x एफ एक्स डी एक्स। तो एग्जैक्टली यही काम किया, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे क्या था मेरे पास, x माइनस म्यू था, वो x माइनस म्यू यहाँ पे डाल दिया, f ऑफ x सारा डाल दिया, 1/2 पाई सिग्मा एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा डी एक्स, ये डाल दिया। नाउ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स कि मैंने z को डिफाइन किया एज x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, लेट z is equal to x minus mu over sigma, or dz comes dx over sigma and dx is equal to sigma dz, and then we say when x goes to minus infinity, z will go to plus infinity, and when x goes to plus infinity, z will go to plus infinity. x माइनस इन्फिनिटी को जाता है तो z भी माइनस इन्फिनिटी को जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को करने की कोशिश करते हैं, z यहाँ में हम रिप्लेस कर दिया, जहाँ पे यहाँ पे क्या था, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा था, उसकी जगह z डाल दिया, यहाँ पे भी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा था, वहाँ पे भी z डाल के उसका होल स्क्वायर ले लिया। अब मैंने शुरू में बताया था कि मैं यूं लिख रहा हूँ, स्पेशली डिफरेंट केस तरीके से लिख रहा हूँ इस जगह पे, y बिकॉज आई वांटेड टू रिप्लेस z। अब अगर इस इंटीग्रांड को देखें हम, तो इट्स एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, इफ यू रिमेंबर, इवन फंक्शन था f ऑफ माइनस एस इक्वल टू f ऑफ x, दिस वाज एन इवन फंक्शन, और ऑड फंक्शन वाज f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x। इसको देखें तो ये ऑड फंक्शन बनता है, और ऑड फंक्शन की एक खूबसूरती थी कि अगर हम सिमेट्रिक लिमिट्स में, यानी कि माइनस ए से प्लस ए ऑड फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो हमेशा जवाब 0 आता है, हमेशा जवाब 0 आता है। ये एक उसकी प्रॉपर्टी थी ऑड फंक्शन की, वो आप यूज करते हुए आपने कह दिया कि लेफ्ट हैंड साइड विच वाज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू इक्वल 0, एंड फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2,
we find that expected value of x minus mu is equal to 0, and I can take this mu on the other side. We find that expected value of x is equal to mu. So hence, therefore, we have found the expected value of a normal distribution. आगे चलते हैं जी, इसकी वेरिएंस निकालते हैं. Let's find the variance of normal distribution. To find the variance of normal distribution, we start off with the definition of variance, which is x minus mu का whole square का expected value, यानी कि mean of x minus mu whole square. तो mean निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 1/2 पाई सिग्मा, तो हमारा क्या हो गया, डेंसिटी फंक्शन का हिस्सा है, और हम इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी किस चीज़ को, x माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू माइनस हाफ x माइनस म्यू अवर सिग्मा होल स्क्वायर d of x. Again, we define something as, let z इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहे हैं हम, let z is equal to x minus mu our sigma and dx is equal to sigma dz, or similarly x goes to minus infinity, z goes to minus infinity, and when x goes to plus infinity, z goes to plus infinity. ये सब कुछ यूज करते हुए where I reach is 1/2 pi square root sigma minus infinity to plus infinity x minus mu our sigma चाहिए था मुझे, तो सिग्मा स्क्वायर था, तो मैं एक सिग्मा स्क्वायर इधर डाल दूं और इधर डाल दूं जी स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस हाफ जी का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह सिग्मा डी जी. तो ये सिग्मा और ये सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एंड आई एम लेफ्ट विथ सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सिग्मा सिग्मा तो बाहर चला गया, जी स्क्वायर ई रेज़ टू माइनस हाफ जी स्क्वायर डी जी. अब ये इंटीग्रेशन जो है ये डायरेक्टली नहीं हो सकती, तो हम इसको क्या करते हैं, वी सॉल्व इट बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मैं यहाँ पे अगर कर लूँ ताकि मेरे पास कुछ जगह बच जाए बाद में, तो हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट ऑफ विद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हेयर, विच इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज u dv इज इक्वल टू u इंटू वी माइनस v इंटू du. तो हम डिफाइन करते हैं, u को हम डिफाइन कर देते हैं g, u को हम डिफाइन कर देते हैं g, और dv को हम डिफाइन करते हैं g e रेज़ टू पावर माइनस हाफ g स्क्वायर. कहाँ से, ये जो g स्क्वायर था इसके दो हिस्से कर लिए, एक को z कह दिया और एक को z इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ जी स्क्वायर कह दिया. जब ये किया तो हमारे पास डी यू जो आएगा वो आ जाएगा डी जी, और v जो आएगा वो आएगा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जी स्क्वायर बाय 2. तो अब अगर हम यूज करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑन दिस इंटीग्रल, ये हमने वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए. Now we start integrating by parts. तो the constant from this equation वही रहते हैं, सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट. तो इंटीग्रेशन जब शुरू करते हैं तो पहला इंटीग्रल क्या आता है हमारे पास, u इंटू वी, u is g and v is this thing, so it is minus g e raised to minus g square by 2, limits from minus infinity to प्लस इन्फिनिटी, देन अ माइनस साइन एंड v का भी एक माइनस था, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल v की जगह हमें डालना है e रेज़ टू माइनस जी स्क्वायर बाय 2 एंड du इज
dg। ये अगर सही हो गया तो ये हमारा टोटल आ जाता है। अगर फर्स्ट टर्म को देखा जाए लिमिट्स डालने के लिए, तो इसको मैं सिर्फ इसको सॉल्व करता हूं। यहाँ पे वो बनती है माइनस जी अवर ई रेज़ टू पावर जी स्क्वायर बाय 2। अब जब हम प्लस इन्फिनिटी डालते हैं तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आती है। फिर हम एल हॉपिटल लगाते हैं तो ऊपर तो आ जाता है 1, नीचे अगेन एक्सपोनेंशियल आ जाता है। तो ये तो हो गया 1 ओवर इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा। जब माइनस इन्फिनिटी डालते हैं तो ऊपर प्लस इन्फिनिटी आता है, नीचे अगेन इन्फिनिटी आता है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को भी एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। एल हॉपिटल रूल क्या था? न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करते हैं एक दफा और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को डिफरेंशिएट किया एक दफा और फिर लिमिट्स दोबारा से अप्लाई की। जब दोबारा लिमिट अप्लाई करते हैं तो ऊपर तो 1 आ जाता है और नीचे अगेन इन्फिनिटी आता है, तो 1 बाय इन्फिनिटी। तो फर्स्ट टर्म गोज टू 0 आ जाती है, पूरे का पूरा टर्म 0 आ जाता है और वी आर लेफ्ट विथ सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 पाई इंटू इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस जी स्क्वायर बाय 2 डी जी। इस इंटीग्रेशन को देखें तो यहां पे मेरे पास 2 पाई का स्क्वायर रूट भी मौजूद है, सिग्मा स्क्वायर भी है। अब आप देखें ये जो फॉर्म है पूरी की पूरी, दिस इज माय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, यहां पे 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, जो कि यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड होता है, तो इसका आंसर हमेशा इक्वल टू 1 आता है। सो व्हाट वी गेट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। नाउ वी हैव फाउंड द वेरिएंस, और वेरिएंस अगर यह है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी? It will be the positive square root of variance, which is equal to sigma. Here we have found the variance of the normal distribution and the standard deviation, which is sigma, and also the mean. Next चलते हैं जी, maxima of the normal distribution. To find the maxima of the normal distribution, we start off with the equation for the normal distribution, which is n random variable x, mean mu and variance standard deviation sigma is given by 1 over 2 pi sigma e raised to power minus half x minus mu over sigma whole square। ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी फंक्शन है। मैक्सिमा कब आएगा? दिस थिंग इज अ कांस्टेंट। इफ यू लुक एट द फर्स्ट पार्ट, इट इज अ कांस्टेंट, इसमें कोई चीज चेंज नहीं होती, सिर्फ रैंडम वेरिएबल एक्स इस एक्सपोनेंशियल में है, और एक्सपोनेंशियल क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू दिस होल थिंग पाई। अब एक्स माइनस म्यू, अब नेगेटिव जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। वो कब होगी? जब x माइनस म्यू इक्वल टू 0 हो, तो x इज इक्वल टू म्यू हो, तो ये चीज 0 हो जाएगी, तो एक्सपोनेंशियल माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1 over 2 pi sigma. That is the maxima of a normal distribution. और अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो if is mu, then it will be like this, और ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी जी? 1 over 2 pi sigma वो लाई करेगी एट म्यू, x इज इक्वल टू म्यू पे ये मैक्सिमा आता है। इसके अलावा कहीं और मैक्सिमा इसका एग्जिस्ट
नहीं करता, और डोंट फॉरगेट द एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1, ये भी याद रखिएगा। इस स्लाइड पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट कर्व्स शो कर रहे हैं, मुख्तलिफ म्यू की वैल्यूज के लिए और मुख्तलिफ सिग्मा के वैल्यू को। यहाँ पे नोट करें आप कि सिग्मा जब छोटा है, इन द फर्स्ट केस सिग्मा इज ओनली सिग्मा स्क्वायर इज 0.2, तो उसमें ये जो कर्व है ये काफी नैरो है। ऑन द अदर हैंड व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, द रेडिश कर्व इज क्वाइट वाइड। दे आर ऑल सेंटर्ड एट म्यू इज इक्वल टू 0, और हमें पता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1/2 पाई सिग्मा पे लाई करता है। मैक्सिमम वैल्यू 1/2 पाई सिग्मा पे लाई करता है। तो जब सिग्मा छोटा था तो मैक्सिमम भी अप हो गया, और सिग्मा बड़ा था तो मैक्सिमम भी छोटा हो गया, बिकॉज 1/सिग्मा में आ रहा है, मगर द टोटल एरिया अंडर द कर्व विल बी सेम। और इस तरह केस देखें, ये म्यू इज इक्वल टू 0 और सिग्मा इक्वल टू 5, ये ब्राउनिश लाइन जो है ये कर्व काफी वाइड है, बट स्टिल इट्स अ नॉर्मल कर्व। फिर हमने लास्ट में ये किया कि म्यू को -2 रख दिया, तो इसका मीन जो है वो शिफ्ट हो गया ग्रीन वाले केस में, यहां पे मीन इसका आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। और यहाँ पे एक चीज नोट करें कि जो नैरो है उसमें मोस्टली वैल्यूज जो है वो मीन के अराउंड लाई करती हैं। ऑन द अदर हैंड ब्राउन वाले केस में मीन के नजदीक कम वेट है, और आगे भी काफी ज्यादा वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। जो इक्वेशन वहां पे लिखी हुई है मेरे पास, 1/2 पाई सिग्मा e raised to power minus 1/2 sigma square x minus mu whole square for x from -infinity to +infinity. मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, विद इट्स वेरिएंस इज व्हाट, सिग्मा स्क्वायर। कांस्टेंट फैक्टर 1/sigma √2 pi makes the area under the Gaussian normal curve equal to 1. The curve is symmetric with respect to the axis defined by x is equal to mu. यानी कि अगर ये रैंडम वेरिएबल है x, तो म्यू पे जब हम एक वर्टिकल लाइन डालते हैं तो ये कर्व जो है सिमेट्रिक होती है इस म्यू के हिसाब से, यानी कि इसका इमेज आ जाता है म्यू के हिसाब से। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये भी हमें याद होनी चाहिए। इससे आगे चलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रहने चाहिए हमें। फॉर एग्जांपल, स्मॉलर द सिग्मा नैरोर द कर्व। वो आपने जो हमने आपको कर्व्स दिखाई थी बहुत सी, उसमें क्या हो रहा था, जब सिग्मा छोटा था कर्व नैरो थी, दैट द फंक्शन गोज टू 0 वेरी फास्ट। उस केस में फंक्शन 0 को काफी जल्दी जा रहा था, अप्रोच कर रहा था। वो इस किस्म की थी कि इस तरह से थी और एकदम से 0 को नजदीक पहुंच रही थी। ऑन द अदर हैंड एक ब्राउन वाली कर्व थी जो कि इस तरह से काफी दूर तक जा रही थी। The curve have its points of inflection at x is equal to mu plus minus sigma, यानी कि x की वो वैल्यू जहां पे mu plus minus sigma हो, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अब प्रोबेबिलिटी हमें पता है वो क्या होती है, इट इज इंटीग्रल a to b of f of x dx, and this is defined as probability of random variable x taking on values from a to b। तो इसी तरह यहां पे क्या कह रहे हैं हम, probability of random variable x going from mu minus sigma to mu plus sigma। ये अगर mu है 0 पे, तो ये माइनस म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा, यानी कि एक सिग्मा लेफ्ट और एक सिग्मा माइनस के दरमियान क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो दैट मीन्स ये टोटल एरिया जो होगा कहां से कहां तक, म्यू -1 सिग्मा से म्यू +1 सिग्मा तक, वो 68% ऑफ द टोटल एरिया बनता है। टोटल एरिया अगर 100 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज नॉर्मलाइज्ड, इट इज इक्वल टू 1। इफ टोटल एरिया इज 100, देन दिस फ्रॉम माइनस म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक ये 68% आ जाएगा यहाँ पे।
और म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा तक ये हो जाएगा 95.5%, ये हो जाएगा 95.5%। एंड म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा तक ये 99.7%, यानी कि 3 सिग्मा इधर और 3 सिग्मा इधर, कहां से, मिनिमम मीन वैल्यू से, तो ये तकरीबन 99.7% एरिया यहां पे आएगा। ऑल दो याद रखिएगा कि ये कर्व जीरो को कभी टच नहीं करती, तो इसका मतलब है 3 से लेके इन्फिनिटी तक टोटल एरिया जो है वो 0.3 है, और बाकी का सारा किधर लाई कर है, 99.7%, कहां से कहां तक, म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा तक लाई कर। नेक्स्ट चलने जी, अगर आपने इनको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक इस पूरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इंटीग्रेट करेंगे एंड यू गेट आंसर विच इज 0.68। इफ यू इंटीग्रेट इट फ्रॉम -2 म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा 2 सिग्मा को पूरे के पूरे डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो आंसर आता है 0.95, दैट इज 95%। क्योंकि टोटल एरिया 1 होता है तो इसलिए हम उसको 0.95 को 95% कह रहे हैं। और म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा तक जब इसे इंटीग्रेट करते हैं तो जवाब आता है 0.997, विच इज 99.7%। तो अगर देखें तो गॉसियन फंक्शन में या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेंसिटी फंक्शन में मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो लाई करती है वो अराउंड द मीन वैल्यू लाई करती है। सिर्फ एक सिग्मा मीन वैल्यू से ऊपर जाए और एक सिग्मा नीचे आए तो ये 0.68 आ जाता है। इसी तरह 2 सिग्मा नीचे जाए और 2 सिग्मा ऊपर जाए तो 0.95% आ जाता है, और 3 सिग्मा नीचे और 3 सिग्मा ऊपर के पूरा का पूरा तकरीबन 99.7% प्रोबेबिलिटी यहां पे एग्जिस्ट करती है। इसी को एक और तस्वीर में देखते हैं कि 1 सिग्मा का जो विड्थ है बेसिकली वो 2 सिग्मा होती है। 1 सिग्मा इस तरफ आता है और 1 सिग्मा इस तरफ आता है, तो दिस इज सिग्मा एंड दिस इज आल्सो सिग्मा। तो टोटल विड्थ तो 2 सिग्मा है मगर मीन के अराउंड है। तो म्यू, दिस इज म्यू प्लस सिग्मा एंड दिस इज म्यू माइनस सिग्मा। तो इसमें जो टोटल आता है वो 68% आता है। फिर आगे जाता है 2 सिग्मा में 95% और 3 सिग्मा में तकरीबन 99% तक प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इसकी ब्यूटी क्या है, नो मैटर व्हाट म्यू एंड सिग्मा आर, द एरिया बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा इज अबाउट 68%. The area between mu minus 2 sigma and mu plus 2 sigma is about 95%, and the area between mu minus 3 sigma and mu plus 3 sigma is about 99.7%. Almost all values fall within 3 standard deviation. 3 standard deviation के अंदर तकरीबन तमाम वैल्यूज खत्म हो जाती हैं। इसमें देखें अगर तो यहाँ पे अभी कुछ वैल्यूज थी मैं, मगर जो पिछले वैल्यूज थी 1 सिग्मा और 2 सिग्मा और 3 सिग्मा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। That brings me to the end of my today's lecture. We discussed normal distribution. In the next lecture we will further continue with normal distribution, do some examples, and the references are again the same textbook which we are following. Please take care of yourself and Allah Hafiz.